I'm thankful to our Atwale Sahab who has given the opportunity and he has ensured to help us in the business of the SCSPs. And he has deputed his Republican parties in serving in all this period, he will take care of it. I thank you to all of them. In the presence of the press meet, I thank all my press media, the fourth pillar of the Indian Constitution, India. आप लोगों को सबको पता है कि ये देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है और all the institutions in India are headed by UDS. Required to be follow the constitution obligation whatever is there in the constitution. In maximum some extent it is found that our general manager, Mr. Chetan Srivastava, he was posted on 13 May 2023 in April, and for his anti-SC/ST attitude of his mindset, the April SC/ST staff has replied from their legitimate claims. In this occasion, with some points of views, leaving all the thousands of problems, we have highlighted the matter to Her Excellency, the Honorable President of India, the Honorable Chief Justice of India, Honorable Chief Justice of Guwahati High Court, Honorable Prime Minister of India, Honorable Railway Minister of India, Honorable Chairperson, National Commission, Parliamentary Committee for Civil and Civil Rights, National Commission, Civil and Civil Rights, and Ministry of Railways and various sources. I have sent some memorandum against the General Manager what he has done against the SCSPs. And we are very thankful to Atwale Sahab. I personally have headed our memorandum and apprised him that the General Manager, Mr. Srivastava, has having his SCSP, FTSCSP will be replaced by anybody else whoever is under Constitution of India. Having no mindset, both of the thoughts. ये भूमिका के आधार पर इसमें किया है हमने इसमें तीन बिंदु रखा among the others. पहला पद है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती ऑल इंडिया में मनाता है और रिलेवंट ने लेकर इशू किया 14 अप्रैल को ये बिफिटिंग में all the judicial release protection in the division branches is got to follow. But unfortunately, Chairman of Railway has denied or has not followed the guideline of Railway Board, which is totally unconstitutional and disregards to our honorable constitution maker Baba Saheb Ambedkar. And interesting is that when one video was there, he was invited as a guest. He landed in front of the meeting, but again he has returned back, which is violation of the Indian Constitution Act, Prevention of SC/ST Act 1989. And accordingly, if it is followed by the Ministry of Railways, he required to go to jail. However, we did appreciate we all the people on the station staff request all the honorable members to highlight the matter against of the business. 26 लोगों को मार दिया गया उसी आतंकवादियों के खिलाफ जब बोले सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब परसों के दिन एयर स्ट्राइक कर दिया और बहुत ही बढ़िया भारतीय लोगों की लिए जो गर्व की बात है कि अगर भारत के ऊपर कोई संकट आता है तो सभी भारतीय मिलकर उसको विरोध करना चाहिए, उसको डिफीट करना चाहिए। इसलिए आज के सिचुएशन में सभी पार्टी के लोग लीडर्स या सभी भारतीय लोग एक साथ में आकर ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी आवाज उठानी चाहिए। ऐसी जगह पे हम सब लोग एक जगह पे आना चाहिए, सभी भारतीयों के लिए भी यह आंदोलन पर है। उसके बाद अभी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन
कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के जी जनरल हरे दास सर उन्होंने जो भी उनके बारे में जैसे कि शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉय के बारे में नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम करते हो तो जिस तरीके से उनके साथ में बिहेव किया जाता है फ्रॉम चेतन श्रीवास्तव जी के माध्यम से जो जनरल रेलवे के जनरल मैनेजर है, तो मैं ये SC/ST एसोसिएशन के तरफ से एम्प्लॉय एसोसिएशन के तरफ से जो मेमोरेंडम ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ द साहब के पास में परसों के दिन दिया गया है और ये मेमोरेंडम मुझे भी दिया है, तो मैं चेतन जी श्रीवास्तव का तीव्र शब्द से जाहिर निषेध करता हूँ कि उनकी माध्यम से भारतीय संविधान में दिए हुए अधिकार का उल्लंघन एक जीएम पोस्ट पे बैठने वाले आदमी के माध्यम से होता है, ये बहुत बड़ी शर्म है। तारकेदास जी ने इस जगह पे पूरा डिस्कशन दे दिया है। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए था रेलवे एम्प्लॉयज में, वो तकरीबन मुझे लगता है 19 मई 2023 को चेतन श्रीवास्तव जी ने अपना पदभार स्वीकार किया था। तभी से लेके अभी तक मतलब साधारण जी ये होते आ रहे हैं। इस 3 साल में एक प्रकार हर जगह से उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के एम्प्लॉइज को प्रताड़ित किया, डिप्राइव किया है और इसलिए हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आटोले नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ से हम मांग करते हैं कि अगर इतनी महत्वपूर्ण सीट पे बैठे हुए जनरल मैनेजर ऐसा बर्ताव करते हैं तो ये भारतीय संविधान के खिलाफ है, भारत सरकार के खिलाफ है, भारतीय संविधान के माध्यम से दिए हुए जो राइट्स है उसके खिलाफ है। ऐसे जनरल मैनेजर को यहाँ उस जगह पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर साहब से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ ऐसे अधिकारी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ से हम लोग बड़े जोरदार से उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो भूमि है पवित्र भूमि है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से एक मैसेज आता है पूरा देश में पूरा जग में, यहाँ से सामाजिक तत्वों के आधार पर सामाजिक समानता कैसी प्रस्थापित करनी है ये हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सीखते हैं। अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग रहते हुए भी बहुत अच्छा तरह से एक दूसरे के साथ में भाईचारा बढ़ा के नॉर्थ ईस्ट के पब्लिक रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कॉमन पीपल से आके रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे पवित्र जगह पे आके ऐसे पोस्ट में बैठने वाले अपनी संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन करने वाले चेतन श्रीवास्तव जैसे मनुवादी व्यवस्था के अधिकारियों का ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनका मैं जाहिर निषेध करता हूँ। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो तीव्र आंदोलन छड़ा जाएगा। आरबीआई की तरफ से तो रेलवे मंत्रालय से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये शेड्यूल ट्राइब के लोगों को डिप्राइव किया जाता है एम्प्लॉइज को, उसके ऊपर कार्रवाई हो। पूरे बहुत सारे एक्टिविटीज में पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है। तकरीबन 126 कंट्री में 14 अप्रैल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया है। उसी टाइम में उन्होंने वो प्रोग्राम को निगलेक्ट करके जिन्होंने जिस डिपार्टमेंट ये प्रोग्राम आयोजित किया था उनके सामने से निकल गए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन उन्होंने नहीं किया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान का और भारत सरकार का सबसे बड़ा ये भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन है। अब ये अपना अपमानजनक स्थिति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम श्रीवास्तव जैसे ऐसे कुछ बोलते के अधिकारी वर्गों ने किया। तो अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये उनके जो कुछ भी एक्टिविटीज है शेड्यूल ट्राइब के एम्प्लॉइज के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में या वहां का उनका जिस तरीके से बिहेवियर है उसके खिलाफ में एट्रोसिटीज केस दाखिल हो सकती है।
ये एविडेंस ऑलरेडी अपने पास में है। अगर जल्द से जल्द उनको यहाँ से हटा दिया जाए, इसमें किसी का इंटरेस्ट है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत सरकार ने जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे, भारत सरकार ने जो कुछ भी नोटिस जारी किए, उनके खिलाफ में जाके ये आदमी अगर काम करता है तो ये भारत सरकार से बड़ा आदमी तो नहीं है। और इंडिया गठबंधन पार्टी के माध्यम से हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग का निषेध करते हैं, और ये मेमोरेंडम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ से भी ऑनरेबल रेल मंत्रालय में भी दिया जाएगा मिनिस्ट्री को। उसके बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी भेजा जाएगा। और यहाँ से मैं हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब हेमंत बिश्वा शर्मा जी, उनको भी दिया जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऐसे टाइप के लोग नहीं रहना चाहिए, और ऐसे टाइप के बिहारीज, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे माइनॉरिटी हो, इन लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो आज आप सब लोगों ने के पास में ये रिसोर्स है, मोदी साहब ने किया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये चेतन श्रीवास्तव का जैसा जनरल मैनेजर सबका विश्वास तोड़ने का काम कर रहा है। मैं फिर एक बार इनका ध्यान निषेध करते हुए मुझे ये SC/ST अपराध की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया है इसका स्वीकार करता हूँ, और जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मेरे तरफ से मैं प्रयास करता हूँ। তাতে যোগদান করার কৃষক সারা কথা ছিল আমার তা দাবি বলেছে, কিন্তু দেখেতে পান্ডুর এই মালিগাঁও নিবুর সম্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করার কৃষক তার পিছনে যে আমার তা কাজে বদলাইছে, তেতিয়া দেখতে আমার তা নাহি পেলায় আমার রাস্তার পরে দেখতে সিধা আমার রাস্তাতেই ঘুষি ঘুষে করা। আর আমার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করেছিল সিনিয়র ইনস্টিটিউট অফ মালিগাঁও, কিন্তু একটু রাস্তায় দেখতে ঘুষি ঘুষি কিন্তু আমার তা মুখ মারে। গতিকে এইটো কেনেধৰণৰ এটা অৱস্থা, কেনেধৰণৰ আমাৰ মানে বিৰাট ডাঙৰ লজ্জাজনক ঘটনা হৈছে, যিটো আমি কোনোমতেই মানে সহ্য কৰিব পৰা নাই। আৰু আমি কিন্তু গৰিহণা দিছোঁ অল ইণ্ডিয়া SC/ST এছ'চিয়েশ্যন, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বহুত অপমানজনক ঘটনা। যিহেতু বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ তেখেতে অপমান কৰিছে, গতিকে আমাৰ গোটেই জাতি, আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ মানুহজনে আমি অপমানিত কৰিছোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ অফিচাৰ, এনেধৰণৰ অধিকাৰী আমাৰ জনত থাকিব নালাগে, আমাৰ এনেধৰণৰ। গতিকে তেখেতক খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে। গতিকে তেখেতৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ আশা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ কৰ্মচাৰী SC/ST সেইকাৰণে ট্ৰেন্সফাৰ বিচাৰোঁ, আৰু চৰকাৰকো আমি উলিয়াই দিছোঁ এনেধৰণৰ অধিকাৰী যাতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত নপঠিয়ায়। কাৰণ আমাৰ বিনোদ ছাৰে কৈছে অলৰেডি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধৰণৰ জাতি জনজাতি একেলগে একত্ৰিত হৈ আমি কাম কৰি থাকোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ অধিকাৰী আমাক নালাগে, যাৰ দ্বাৰা আমি একো নাপাম। গতিকে এইখিনি কৈ মই ইয়াতে বক্তব্য সামৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় হিন্দ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।